تو آج ہم سیکھیں گے، یاد رکھیں، نکالیں میرے ساتھ خروج کی کتاب اس کا 17واں باب۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران ایک ایسی قوم کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کا سمجھ لیں کہ اکاؤنٹر ہوتا ہے، اور اس اکاؤنٹر میں جو ہے جنگ ہوتی ہے ان کی امالیکیوں کے ساتھ۔ یہ امالیکی جو ہیں 17 باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو امالیکی جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ جنگ کریں، اور خدا جو ہے، یاد رکھیں، جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر جنگ جب آپ کرتے ہیں تو پھر خدا کی مرضی کے ساتھ جب آپ موو کرتے ہیں تو پھر جنگ جو ہے وہ فتح آپ کے لیے ہے، اور خدا آپ کو فتح سے بڑھ کر کیا دے گا جی؟ غلبہ دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ نکالیں میرے ساتھ خروج 17 باب اور اس کی 8ویں آیت سے، بلکہ 8ویں آیت سے پڑھیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے خداوند کی زندہ آواز کو سنیں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالیکیوں سے لڑ، اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں گا۔ سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع امالیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ہاللیلویہ۔ اچھا یہاں لکھا ہے، اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ہماری طرف سے کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالیکیوں سے لڑ، اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں گا۔ سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع امالیکیوں سے لڑنے لگا۔ اب لڑنے کا جو ہے خدا کی طرف سے لیڈر کون کر دیا گیا تھا جی؟ موسیٰ لیڈر ہے، اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ کیا کر، تو کچھ آدمیوں کو چن لے اور جا کر ہماری طرف سے امالیکیوں سے کیا کر جی؟ جنگ کر، لڑ، اور میں کیا کروں گا، خدا کی لاٹھی کو لے کر پہاڑ پر جا کر کیا کروں گا جی؟ کھڑا رہوں گا۔ اب یاد رکھیں یہ جنگ جو ہے کیسے جیتی گئی۔ یاد رکھیں جنگیں جو ہیں آج بھی ہمارے بہت سارے ہمارے جو ہے وہ پرابلمز ہیں، ہمارے لیے جنگ کا سما بنا ہوا ہے، بہت ساری مشکلات ہیں، اور کئی دفعہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، ہمارے پاس زیرو ریسورسز ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں کیسے جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے، لیکن یاد رکھیں یہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں، اور جنگ کو فتح کی طرف اور فتح حاصل کرنے کے لیے جنگ کے اندر آپ کا جو انٹرسیشن ہے وہ کیسے ہونا چاہیے۔ بائبل مقدس میں پہلے نمبر پر جنگ کے لیے موسیٰ نے یشوع کو کہا کہ تو کیا کر جی، کچھ لوگوں کو لے اور جنگ کے لیے لڑنے کے لیے جا، اور میں کیا کروں گا، خدا کے حضور پہاڑ پر جاؤں گا اور کیا کروں گا جی؟ دعا کروں گا۔ اب دعا کا جو ہے یاد رکھیں تلوار سے کہیں زیادہ طاقت کس میں ہے جی؟ دعا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنگ فتح کیسے پائی جاتی ہے۔ فتح جو ہے موسیٰ پہاڑ پر جا کر دعا کر رہے ہیں، اور جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو یشوع کی تلوار جو ہے وہ فتح کی طرف بڑھتی ہے۔ یشوع کی تلوار کس کی طرف بڑھتی ہے جی؟ فتح کی طرف بڑھتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے دعا ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے جی؟ دعا ہو رہی ہے، اور دعا کون کر رہا ہے؟ موسیٰ لیڈر جو ہے وہ جنگ کرنے والے لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے جی؟ دعا کر رہا ہے، اور ہاتھ کس طرف اٹھائے ہوئے ہیں؟ کس کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جی؟ آسمان کی طرف، ہاتھ آسمان کی طرف ہیں، اور جنگ یشوع لڑ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جب کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب ہاتھ ڈھیلے ہو جاتے، جب وہ تھک جاتا، ہاتھ نیچے کرتا، تو دشمن کی تلوار یشوع کے اوپر بھاری پڑتی، دشمن جو ہے وہ فتح پاتا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے جیسے ہی وہ ہاتھ پھر اوپر کرتا تو یشوع کی تلوار فتح پاتی، یشوع کے لوگ فتح پاتے، یشوع کے لوگ آگے بڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یاد رکھیں موسیٰ جو تھا کمزور تھا، بوڑھا بھی تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کمزور ہو سکتا ہے،
लेकिन उसके लिए जो मददगार होते हैं ना चर्च के अंदर, एल्डर, डीकन, मुबशर, जो डीकन्स जितने भी बहने वूमेन सब मिलकर, जब मिलकर लीडर के साथ दुआ करते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो फिर याद रखें, फिर फतह से बढ़कर क्या मिलता है जी? गलबा मिलता है। अब उसके साथ जो है कुछ लोग उसके साथ भी थे। कलाम खुदा में लिखा है बाइबल मुकद्दस में 10वीं आयत में, सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और होर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता बनी इस्राएल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता तब अमालेकी गालिब होते। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और उसके ऊपर बैठ गया, और हारून और होर एक इधर से और एक उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यशवा ने अमलीकियों और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। हालेलुया। अब क्या थी? दोनों ने, एक उसका भाई था और एक लीडर था जो उसके साथ दुआ गो था, दोनों ने उसको क्या दिया जी? सहारा दिया। पहले नंबर पर ज्यादा देर तक वो खड़ा नहीं रह सकता था, उसको बिठाया गया पत्थर पर। क्या किया गया जी? बिठाया गया। और बिठाने के बाद ऐसा नहीं कि हम जो है कहते हैं जी ये हमारा जो है लीडर कमजोर हो गया तो उसको हटाकर जो है मजबूत हाथों में लीडरशिप सौंपी जाए, बल्कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मूसा तू अब नीचे चला जा। हम दोनों मिलकर क्या करते हैं जी? दुआ करते। बल्कि उन्होंने कहा खुदा हमारे लीडर के साथ है। खुदा हमारे क्या जी? जब ये हाथ उठाता है तो हम बरकत पाते हैं, जब ये बोलता है तो खुदा बोलता है। जरूरी है कि हम इसको सपोर्ट दें। और कलाम खुदा में लिखा है कि पहले नंबर पर उसको क्या किया गया जी? उसको कंफर्ट किया गया। ज्यादा देर तक वो खड़ा नहीं रह सकता था, उसको कंफर्ट किया गया, उसको बिठाया गया। बिठाने के बाद उन दोनों ने क्या किया? एक ने दाईं तरफ से और एक ने क्या पकड़ लिया जी? बाईं तरफ से हाथ पकड़ लिया, और उसे कहा मूसा तेरे हाथ नीचे नहीं आने चाहिए क्योंकि खुदा तेरे क्या है जी? साथ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जंग जो है, यहोशू जंग जीत जाता है, और जंग जीतने की वजह उसकी तलवार नहीं है, जंग जीतने की वजह जो है वो दुआ है। वो क्या है जी? दुआ है। याद रखें, अपनी जंग को अपने अल्फाज से और अपनी बातों से और अपने झूठे मुकदमों से लड़ने की कोशिश ना करें। कई दफा हम अपनी बेटियों के मुकदमों के अंदर या बेटों के मुकदमों के अंदर झूठ को शामिल कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल करते हैं, घरों के अंदर मामला ऐसे हो जाते हैं, और लोग हमें सजेशन देते हैं कि थोड़ा जब इंज करो, फिर केस वजनी तो तब ही होगा ना जब ऐसे करेंगे, ये बात शामिल करें तो आपका केस बड़ा भारी हो जाएगा। ऊपर से बेशक आपका केस खारिज हो जाए, वो जंग बेशक आपकी ना लड़े। कई दफा इसी तरह केस भी लंबे रहते हैं। और जब खुदा के हाथों में जब हम केस दे देते हैं, कलाम खुदा में लिखा है बनी इस्राएल कौम की जंग जो है वो खुदा लड़ रहा था। यहोशू की तलवार नहीं चल रही थी, बल्कि खुदा का हाथ चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का हाथ चल रहा था। क्यों? क्योंकि खुदा की तरफ से मूसा के जरिया से खुदा काम कर रहा था, और जब खुदा काम करता है तो याद रखें फिर फतह से बढ़कर गलबा मिलता है। कभी भी अपने मुकदमों में, कभी भी अपने लड़ाई झगड़ों में ऐसे लोगों को शामिल न करें जो आपको अपनी तरफ से बातें डालने की कोशिश करते हैं। कई दफा बहुत सारी दुनिया में बड़े कब्जा ग्रुप भी हैं, जगह की कब्जा करते हैं, और कई दफा ऐसे भी हैं। मैं एक टीवी में पढ़ रहा था कि किराएदार होशियार हो जाएं, कब्जा ग्रुप भी होते हैं जो किराए पर खा लेते हैं और बाद में वो पक्का ही कब्जा ही कर लेते हैं, फिर केस लड़ते हैं। वो झूठ पर, दुनिया की जो है अदालतें झूठ पर चल सकती हैं, आपके झूठे मुकदमे आप जीत सकते हैं,
लेकिन आपको पता नहीं है, जमीन पर आप जीत जाएंगे, आसमान पर आप हार जाएंगे। आसमान पर से आपकी जगह खत्म हो जाएगी। जमीन पर आप मुकदमे हार भी जाएं। कई दफा हम अपनी जुबान मुंह में होती है तो हम कहते हैं जी लड़ाई झगड़े में मैं पीछे क्यों रहूं। जुबान से हम जो है डिबेट को जीतने की कोशिश करते हैं। जुबान से आप हार भी जाएं, अपने आप को छोटा करें, कमजोर कर लें, कहें जी मैं तुझसे कमजोर, छोटा, छोटे बन जाएं, उसके लिए ज्यादा दुआ करें। एक वक्त ऐसा आएगा कि खुदा आपकी जंग खुद लड़ेगा। खुदा आपके सारे मामलात को देख रहा होता है। जब आप अपनी तरफ से जंग करते हैं तो फिर खुदा आपके साथ नहीं होता। जब आप अपनी जंग को खुदा के साथ कहते हैं लीडर, क्योंकि जंग लड़ने के लिए जंग की कॉलिंग जो है वो खुदा से जो है बातचीत करने के बाद मूसा ने यशवा को कहा, और यशवा ये भी कह सकता था कि मूसा तू भी हमारे साथ चल। जरूरी है कि खुदा का खादम होगा तो कोई दुश्मन हमारे ऊपर गालिब नहीं आएगा। बल्कि उसने जो काम कहा, यशवा ने कहा हाँ जिस काम के लिए तू जा रहा है वहां से मुझे तकवीयत मिलेगी। और कलाम खुदा में लिखा है वो दुआ करता रहा और बनी इस्राएल कौम क्या पाती रही जी, अपने मुकदमों को खुदा के दूर पेश कर दिया। कभी भी किसी भी झगड़े में इंटरफेयर ना हो। अगर आपकी अपनी जगह है, आपने खून पसीने के साथ जो है उसको खरीदा है, परचेज किया है, लेकिन दुश्मन ने आपके नाक में इतना दम कर दिया है कि वो आपकी जगह को छोड़ने के हक में ही नहीं है। आप कोशिश आपने बड़ी की है, लेकिन आखिरी अदालत ये है कि आप उस मुकदमे को खुदा की बारगाह में पेश कर दें। जब आप खुदा की बारगाह में पेश कर देंगे तो जमीन की अदालत से पीछे हटें, उसे कह देंगे बस ठीक है जी आप जो मर्जी कर लें, मैंने अपना मुकदमा खुदा की अदालत में पेश कर दिया। मेरे मोबाइल के अंदर एक पिक्चर है जो कि मैंने अक्सर जब यूथ में बैठता हूँ तो शेयर करता हूँ, तो मैंने दिखाता हूँ। अगर भी मोबाइल मेरा चले है सही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसी आपको ये कहानी स्टोरी आपको सुना दूँ। दो भाई थे, वो दोनों भाई, ये सच्ची कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, और ये यानी कि टेलीविजन पर उन दोनों भाइयों की कब्रों को दिखाया गया। कार्नर का प्लॉट था और मार्केट के अंदर था प्लॉट। अब हुआ कुछ इस तरह से कि दोनों भाई लड़ रहे थे। एक कह रहा था मुझे वो मालक, मैं बन जूं मालक, और दूसरा कह रहा था जी मैं मालक बन जूं। अब वो दोनों अदालत के जरिए से कोशिश कर रहे थे कि जंग को जीता जाए और इस मुकदमे को जीता जाए। अब दोनों भाइयों के अंदर लचक नहीं है। अब भाई दोनों ये भी कह सकते हैं यार अगर तू डाल देगा तो कोई बात नहीं, तो मेरा भाई है। दोनों भाइयों के अंदर लड़ाई चल रही है। एक वक्त ऐसा है कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। दो फैर उसने मारे, दो फैर उसने मारे होंगे, दोनों कत्ल हो गए। अब बाप उनको समझाता रहा दोनों मिलकर कारोबार कर लो। बाप ने फिर क्या किया, बाप ने उसी प्लाट के अंदर दोनों की कब्रों को बना दिया मार्केट के अंदर, ताकि लोग आते जाते देख लें कि असल इंसान की जिंदगी ये है। घरों के लिए, जायदादों के लिए हम जंग करते हैं, लेकिन मसीही ईमानदार की जंग ये जमीन नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है। मसीही ईमानदार की जंग जो है वो अबलीस की उन रूहानी फौजों से है जो कहाँ रहती है, आसमानी मकामों में रहती है। जब आप अपनी डायरेक्शन ठीक कर लेंगे, जब आप अपनी लड़ाई की देख लेंगे कि मेरी लड़ाई है किसके साथ है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्शन ठीक होगी। मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, और याद रखिए ये भी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। ऐसे एक दूसरे को जो है वो बताता है, शोहर कहता है कि ये ठीक नहीं है, बीवी कहती है ये ठीक नहीं है। लेकिन जंग कैसे जीती जा सकती है, एक खामोश रहे और खुदा के पास चले और उसके लिए क्या करना शुरू कर दे। मेरा कजन है जो कि बहुत शराब पीता था, जुआ खेलता था, जुए में उसने अपना घर हरा दिया, सब कुछ हरा दिया, घर का सत्यानाश कर दिया। उसकी बीवी बड़ा अरसा उसके साथ लड़ती रही, झगड़ती रही, लेकिन आज से
तकरीबन 7 साल पहले, बल्कि जब यहाँ ये लेंटर पढ़ने लगा था तो लेंटर के ऊपर शुक्रगुजारी में वो मेरे साथ आई थी बहन। तकरीबन लगा लें 5 से 6 साल हो गए। 5 साल पहले मैंने उसको एक मशवरा दिया। मैंने कहा कि तू लड़ती है, पेक लेके चली जाती है, फिर ये करती है, फिर वो एक दफ़ा उसने मुझे सर भी दिखाया। फिर एक दफ़ा मेरा बेटा तो सिमाब लेकर गया था हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल सिमाब लेकर गया। सुबह 5 बजे का टाइम, 4 बजे का टाइम था। कॉल कीजिए, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने इसको भेजा, ये उसको हॉस्पिटल लेकर गया। पता चला जी सर लड़ाई हुई है, उसने सर खोल दिया, इसका पट्टी कराई। उसको मैंने एक तरीका बताया। कई दफ़ा हम लफ्ज़ों से जंग जीतते हैं। लोगों को, रिश्तेदारों को बताते हैं तो मैं ठीक हूँ, मेरा शोहर ठीक नहीं है। बीवी कहती है शोहर कहता है मैं ठीक हूँ, मेरी बीवी ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं करती। शोहर बीवी कहते हैं ये काम नहीं ठीक करता। तो इस तरह से हम लड़ते रहते हैं। मैंने उसको बताया कि एक काम करना शुरू कर, हफ्ते में 1 दिन रोज़ा रखा कर, दुआ शुरू कर। और कभी भी तेरा शोहर तुझसे लड़े तो तूने क्या रहना है? खामोश रहना है। वो जो कुछ मर्जी कह दे, और तूने जंग कैसे लड़नी है? दुआ के साथ। और कहना खुदावंद ये जो कुछ कह रहा है मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती, तू कर सकता है, तू मेरे शोहर को क्या कर दे? बदल दे। लेकिन जंग के दौरान औरतें करती क्या? वो जंग के दौरान जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वो कई दफ़ा इतनी डिप्रेशन में आई तो कहती हैं अब मैं इस शख्स के साथ गुजारा, लफ्ज़ ये इस्तेमाल होता है। और बीवी शोर कहता है मैं इसके साथ गुजारा नहीं कर सकता। अब चूंकि वहाँ पर जब ऐसी बातें, नेगेटिव बातें होना शुरू हो जाती हैं तो फिर इब्लीस की एंट्री हो जाती है। क्योंकि मियाँ बीवी के अंदर जब नेगेटिव बातें, जब वो अपने तौर से जंग जीतने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहकर, तो फिर क्या होता है? इब्लीस की एंट्री हो जाती है और फिर वो दोनों ऐसे अलग होते हैं कि फिर वो दोबारा जुड़ नहीं सकते। इब्लीस उन्हें जुड़ने ही नहीं देता। लेकिन अगर उन दोनों में से एक के अंदर खुदा की बात आ जाए तो याद रखें फिर खुदा क्या है? इस औरत ने दुआ करना शुरू किया, चर्च में आना शुरू कर दिया, अभी सेमिनरी कर रही है, वो दुआ रोजे में ठहरना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसके घर के हालात बदलने शुरू हुए। ऐसे हालात बदले कि अब पैसे की कोई कमी, हालेलुया, सिर्फ पैसे की कमी नहीं, याद रखे दोनों मियाँ बीवी को खुदा ने कसरत के साथ बरकत दी है। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके घर के अंदर पैसे कितने पड़े हुए। हालेलुया। लास्ट ही 2 वीक हो गए, उन्होंने तकरीबन 10 वीक गाड़ी भी उन्होंने परचेज की है, जो कि मेरे ख्याल में 20 से 25 लाख की वो गाड़ी है। वजह क्या है? जंग करने का तरीका हमें नहीं आता। हम जंग करते हैं लेकिन करते हैं अपनी गुफ्तगू से, अपनी ताकत से। लेकिन जब हम अपनी जंग को यहोवा के नाम से शुरू करेंगे, जब हम यहोवा के नाम से शुरू करेंगे, दुआ से शुरू करेंगे, तो हम जंग जीतना शुरू हो जाएंगे। अब उसका शोहर ना तो वो शराब पीता है, ना वो जुआ खेलता है, बल्कि अभी भी वो संडे वाले दिन भी मुझसे मिल कर गया और मुझे हदिया भी देकर गया। उसने कहा पर साहब इतनी शुक्रगुजारी है कि बयान से भी हालेलुया। और वो ये कहता है कि इसकी वजह मैं नहीं हूँ, मेरी वाइफ है। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं, बेटे को या बेटी को, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के हालात ठीक हों, तो जंग आपने कैसे करनी है? दुआ से। यशवा की तलवार काम नहीं कर रही थी, खुदा का हाथ बढ़ा हुआ था। और दुआ हाथ कैसे बढ़ा हुआ था? क्योंकि दुआ चल रही थी। पतरस कैद खाने में था, बेड़ियों से बंधा हुआ था, और कलीसिया क्या कर रही थी जी? पीछे दुआ कर रही थी। पतरस की बेड़ियां और कैद खाने के दरवाजे कैसे, किस वजह से खुले? पीछे क्या हो रही थी जी? दुआ हो रही थी। याद रखें, दुआ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपनी अपनी जिंदगी में ले लिया। मुसीबत, दुख, बीमारी जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, चैलेंजेस जितने मर्जी बड़े क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, आप एक बात पकड़ लें कि इस चैलेंजेस को जीतना है दुआ के जरिए से। और कहते लूका की इंजील उसके 18वें बाब की पहली आयत में यीशु मसीह ने एक तमसील कही दुआ करने से, दुआ करने के तलक से। उसने कहा दुआ करते रहना है।
दुआ से जंग जीती जाती है। और तमसील यीशु मसीह ने कैसे की? उसने कहा किसी शहर में बेवा थी। निकालें जरा, अगर आप निकाल सकते हैं जल्दी से। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे एक तमसील कही। हर वक्त क्या करनी चाहिए जी? यीशु मसीह ने कहा दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी। अब मूसा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ये नहीं कहा कि मुझे नीचे जाने दो या मुझे कुछ थोड़ा वक्फा दो ताकि मैं खाना खा लूं, मुझे रेस्ट चाहिए। कलाम में लिखा है सुबह से लेके सूरज गुरूब होने तक उसके हाथ आसमान की तरफ बढ़े रहे। जब आपके हाथ आसमान की तरफ, जब आप दुआ करते रहते हैं तो याद रखें फिर खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हिम्मत ना हारें। जब आप समझते हैं कि आप थके हुए हैं, आप थक चुके हैं, आपका खड़े रह कर दुआ खड़े होकर कर रहे हैं, नाइट प्रेयर चल रही है, खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, आपकी कमर में दर्द शुरू हो गया, आप समझ ले काम शुरू हो चुका है। इब्लीस आपको दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ताकि यहां पर ये स्टॉप कर जाए, ताकि नेक्स्ट लेवल तक ये जा ना सके। हालेलुया। नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए जरूरी है कि आप कभी भी हिम्मत ना हारें, दुआ करते चले जाएं, दुआ करते चले जाएं। और जब आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो फिर रिजल्ट खुदा की तरफ से ऐसा ही आएगा कि वो फतह से बढ़कर आपको गलबा देगा। बीमारी चाहे जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, मुकदमा चाहे आपका जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, आपको नजर आ रहा है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता, मेरे साथ इंसाफ नहीं हो सकता, तो आप अपने मुकदमे यीशु के हुजूर पेश कर दें। खुदा फिर जब मुकदमा लड़ता है तो फिर आपको पता ही है क्या होता है। खुदा जब काम करता है तो फिर बड़े बड़े काम होते हैं। एक बच्चा, जो मैं पूरी स्टोरी तो नहीं आपको सुनाऊंगा, एक बच्चा जो कि स्पेशल था, ये सच्ची कहानी मैं आपको बता रहा हूं, स्पेशल बच्चा था, ज़हनी तौर पर वो ठीक नहीं था, उसके ऊपर फतवा लगा दिया गया कि इसने तौहीन कर दी है। उसको आग में, खेत के अंदर आग लगाकर जला दिया गया। खुदा ने जब लाइन खींची तो उसी खेत में एक बड़ा सा पेट्रोल का टैंकर गिर जाता है। उसी गांव में जाकर लोग कहते हैं आयल ले लो भाई, पेट्रोल फ्री में मिल रहा है। लोगों ने भरना शुरू कर दिया। और खुदा जब लाइन खींचता है, नहीं समझता उस, क्योंकि वो बेवा औरत थी, बेवा औरत का बच्चा था, एक ही उसका बच्चा था, ये सच्चा वाकया है, एक ही उसका बच्चा था। उसकी माँ ने दुआ की, खुदा मैं यहां मुकदमा नहीं कर सकती। उसके आंसुओं को खुदा ने देखा और उसका मुकदमा कहां चला गया? आसमान पर। फिर खुदा ने लाइन खींच दी और उसी लाइन के अंदर खुदा ने पेट्रोल गिरा दिया। और फिर क्या हुआ? लोगों ने पेट्रोल मोटरसाइकिलों में, गाड़ियों में, कंटेनर और बर्तनों में, कैनों में भरना शुरू कर दिया। और वहीं पर कोई ऐसा शख्स भी आया जिसने आग लगा दी, आग लगी या खुद लग गई। और वहाँ पर उसी खेत में, मुझे नहीं पता कितने तादाद में, कितने लोग जो उसी खेत में चलकर मारे। मेरे अजीजों, कभी भी आपके साथ ज्यादती हो रही है ना, तो आप इंतशार में ना आ जाएं, चीजों को गिराना ना शुरू करें, अमारतों को नुकसान ना पहुंचाना शुरू करें। आप दुआ करें। आपके पास बहुत बड़ा हथियार कौन सा है जी? दुआ का है। मसीह ईमानदार को अगर हर्ट किया जाता है, अगर आपके ईमान को सताया, आपको परेशान किया जाता है, तो आपका काम नहीं है कि ईंट के बदले आप पत्थर मारे उसको। कलाम में लिखा है, मसीह की तालीम ये है कि अगर तुम्हारे एक हाथ पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसको पेश कर दो। और उसके लिए क्या करो जी? दुआ करो। दुआ के जरिए से जंग शुरू कर दो।
और आपने तलवार से जंग नहीं करनी, आपने दुआ से जंग करनी है और अपने घरों के अंदर बैठकर दुआ करनी है। अगर आप सच्चाई पर कायम रहेंगे, खुदा का कलाम सच्चाई है, अगर आप सच्चाई पर कायम रहेंगे तो खुदा आपको फतह से बढ़कर गलबा देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस बात को याद रखना है। ये बेइंसाफ काजी है। 18वें बाब की पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ दी है। किसी शहर में, दूसरी आयत में, किसी शहर में एक काजी था, वो ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता। कुछ ऐसे भी काजी होते हैं, वो खुदा से नहीं डरते, ना किसी आदमी की परवाह करते हैं, अपने मफादात के लिए जिंदा रहते हैं, अपनी जातियात के लिए जिंदा रहते हैं, अपनी जात पर ईमान रखते हैं। वो कहते हैं बस मेरी जात है, मेरे लिए हो जाए जो कुछ भी हो जाए। ये अपनी जात के लिए था। तो इसके घर में बेवा जाती है, इसके शहर में, क्योंकि काजी का मतलब है इंसाफ करने वाला जज, और उस जज को सिर्फ अपने घर की, अपने ब्रीफ केस की फिक्र थी। उसको किसी मुकदमे की फिक्र नहीं थी कि मुकदमा सच्चा है या झूठा है। वो आज भी ऐसे दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में सच्चे आदमी की कोई परवाह नहीं है, ब्रीफ केस की परवाह की जाती है। जहां माल ज्यादा मिले उसकी तरफ फैसला हो जाता है। ये काजी भी कुछ ऐसे ही था। ये बेइंसाफ काजी था। कलाम में लिखा बेइंसाफ काजी था, लेकिन एक बेवा हर रोज इसका दरवाजा खटखटाती है। ये दुआ करने के तरफ से यीशु मसीह ने तमसील कही कि हर रोज दुआ करते रहो, दुआ में कभी हिम्मत ना हारो। वो हर रोज अब उस काजी का दरवाजा खटखटाती रही, और काजी ने कहा ये तो मेरे नाक में क्या कर देगी जी, तंग कर देगी, ये मेरा जीना इसने मुश्किल कर दिया हुआ है, ये मुझे परेशान कर रही है। मैं बेशक बेइंसाफ हूँ, मैंने कभी कुछ सच्चा मुकदमा नहीं लड़ा, लेकिन मैं इस औरत का क्या करूंगा, इंसाफ करूंगा। और यीशु कहता है कि अगर वो बेइंसाफ काजी जो है, 6 आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात और दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? आमीन। देखिए खुदा कहता है कि ये बेइंसाफी की बात को सुनो। वो क्या कहता है, बेइंसाफ काजी कहता है कि मैं इस औरत का क्या करूंगा जी, इंसाफ करूंगा। अब खुदा कहता है, यीशु कहता है कि इस बेइंसाफ काजी की बात सुनो, ये बेइंसाफ है, तो वो भी कहता है मैं इसका क्या करूंगा। इसका मतलब है कि हर बार रोज रोज आपकी बीमारी मुश्किल है, कमजोरी है, पेट के अंदर प्रॉब्लम है, आपका कर्ज है, मुश्किल है, आपको जितना बढ़ती आपकी जिंदगी के अंदर इर्द गिर्द मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, इसका हल सोल्यूशन एक ही है जो यीशु मसीह ने बता दिया। हर मुश्किल का, हर परेशानी का, ईमानदारी की मुश्किल परेशानी का सोल्यूशन एक ही है, और वो क्या है जी, दुआ। जंग जीतनी है, दुआ। मुकदमा जीतना है, दुआ। अगर आप दुआ करते जाएंगे मुकदमा यीशु आप ले लेगा। आपकी बीमारी आपको देख रहा है, वो आपके दिल को जानता है, आपके दिल की कंडीशन क्या है, आपके स्टमक की कंडीशन क्या है, आपको शुगर है, बीपी है, जो कुछ भी है आपको खुदा जानता है। आप अपनी सारी दरखास्तें उसके हजूर पेश कर दें, परेशान ना फिरो, खटखटाएं और फिर छोड़ दें, खटखटाएं और क्या करें, छोड़ दें। यानी कि दुआ करें और फिर ईमान रखकर अपने काम काज करते रहें। मैंने कह दिया यीशु को, इस ईमान से बात करें कि मैंने अपने यीशु को कह दिया, मेरा काम हो जाएगा, ईमान से मेरा काम हो जाएगा। तो यीशु ने कहा वो बेइंसाफ काजी है, अगर वो इंसाफ कर सकता है तो आपका खुदा बेइंसाफ नहीं है, वो आदिल है, इंसाफ करने वाला खुदा है। आमीन, आमीन। तो इस बात को याद रखना है। आज का हासिल कलाम ये है कि अपने मुकदमे खुदा के हजूर पेश कर दें। यशवा तलवार के जरिए से जंग नहीं जीता, बल्कि जो पीछे दुआ हो रही थी उसके जरिए से वो जंग जीत गया। पतरस के लिए दुआ हो रही थी और खुदा ने उस दुआ का रिजल्ट ये दिया कि जहां दुआ हो रही थी पतरस वहां पहुंच गया। हालेलुया। तो कितने लोग दुआ करेंगे? दुआ से जंग। आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, मियाँ बीवी के अंदर है, माँ बाप के अंदर है, बहन भाइयों के अंदर है, आपके घर में से आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपने कलाम को सुना है, दुआ शुरू कर दें। कोई बात ना करें, बस दुआ कर दें। दुआ के जरिए से ऑटोमेटिकली आपके घर में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आमीन।